Good morning, 12th standard. Today we are going to discuss chapter 2 solution, and in which we are going to study ideal and non-ideal solutions in detail. But in my previous one video we have already discussed about the vapor pressure of liquid solutions and especially of volatile solutions. So now we are going to study about the ideal and non-ideal solutions. As you can see here that the vapor pressure, before starting the ideal and non-ideal solution, I just want to discuss again once more that what is the vapor pressure. तो हम कह सकते हैं कि at constant temperature the pressure which is exerted by the liquid, ठीक है, liquid का उसकी surface पे जो pressure exert होता है and when they are in equilibrium. volatile liquids है, volatile liquids के यहाँ पे vapors भी हैं, ये रे vapors, और नीचे क्या है, liquids है. तो जब इनका एक equilibrium बनेगा बच्चे, और क्या होगा कि इसकी pressure exert होगा किस पे, surface पे. So that pressure is known as vapor pressure. Okay, this is the vapor pressure of a pure one, and it is the pure जो भी सॉल्यूट वगैरह जो भी लोगे, और इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, ये वाला. We have already discussed about the Raoult's law, but again I just want to repeat it once more that for non-volatile solute there is the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute at given temperature जो होता है that is equal to the product of vapor pressure of pure solvent and its mole fraction. ठीक है ना. सपोज हम बात कर रहे हैं दो कंपोनेंट की, बाइनरी सोल्यूशन में ही होता है. तो अगर बाइनरी सोल्यूशन में है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए is equals to the partial pressure of pure component A multiplied by the mole fraction of A component. तो in generally हम ये कह सकते हैं कि on adding a non-volatile solute to a solvent vapor pressure of solution क्या होगा, that will always gets lowered, कम होता चला जाएगा. ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जितना आप सॉल्वेंट के अंदर मिलाओगे, वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का, किसका, सॉल्यूशन का, दैट गेट्स लोवर्ड. ओके, और अगर हम बात करते हैं फॉर वॉलेटाइल सोल्यूट की, तो फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ऑफ एनी कंपोनेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये रहा दैट पी टोटल is equals to PA plus PB. Okay, that is, so all of this we have discussed in our previous one class, so I'm not going to tell you about in detail. ठीक है, ये हमारा just एक है आपका ideal non ideal से पहले आपको पढ़ना जरूरी था, तो that's why I have discussed it with you. ठीक, now this is the comparison in between ideal and non-ideal solution. सबसे पहले तो बेटा मैं ये बता दूं, ideal solution is the solution in which delta V mix change in volume of a mixture that is equals to 0, means negligible,
and change in enthalpy of a mixture is also equals to 0. तो ऐसा solution हमारा क्या होगा, ideal solution होगा, या जिसमें pressure of component A is equals to the pressure of pure component A into mole fraction of A. Pressure of component B is equals to partial pressure of component B pure component or into mole fraction of B component. So अगर ये conditions fulfill होती हैं किसी solution में, usually जो कि completely नहीं हो सकता, जैसे हमने 11th standard में ideal gases भी पढ़ी थी. So ideal gases are those gases which follows a PV is equals to nRT rule, ठीक है ना, आइडियल गैस लॉ रूल को फॉलो करती थी. बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल किसी किसी सिचुएशन में या कंडीशन में होता है. तो यही सेम चीज़ हमारी सॉल्यूशंस में भी होती हैं कि देयर इज़ नो आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीटली, बट येस एट सर्टेन टाइम एट सर्टेन कंडीशंस देयर आर द सॉल्यूशंस व्हिच बिहेव्स लाइक एन आइडियल. तो ये आपकी कंडीशंस हैं इसमें. जस्ट 1 मिनट बेटा, ठीक है. ये conditions हैं, and as well as the solution in which the forces of interaction in solution are same as in pure components. वही मैंने बोला ना कि that is AB interaction, जो A component है और जो B component है उसका interaction is same as AA and BB interaction. So such a solution जिसमें कि सेम इंटरैक्शन होगा दो कंपोनेंट्स के बीच में, और इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा ए कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में और बी कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो भी अगर सेम होगा तो दैट इज नाउ सपोज टू नोन एज आइडियल सॉल्यूशन. वेयर एज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, so obviously the forces of interaction are different from which is present in pure component. मतलब कि AB interaction जो है that will be different from AA and BB interaction. ठीक है जी. तो इनसे क्या होगा, डिफर करेगा, जिसमें कि फिर हम क्या होगा, क्या कंडीशंस आ जाएंगी कि डेल्टा या हम कहें चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ मिक्सचर दैट विल आल्सो नॉट इक्वल्स टू बी 0, एंड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ मिक्सचर. ऑब्वियसली बेटा जब दो कंपोनेंट्स को आप मिक्स करोगे तो उसका वॉल्यूम में कोई चेंज अगर आइडियल है तो नहीं आएगा, और अगर वो आइडियल नहीं है तो देयर इट विल बी चेंजेस. ऐसे ही अगर जब दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाता है तो उसकी एंथैल्पी का, मिक्सचर की एंथैल्पी के चेंज में आइडियल में there will be no change, whereas if it is a non-ideal then there will be a change, means it is not equals to 0. Similarly, the pressure of component A will not be equals to the partial pressure of pure component A into mole fraction of component A, and partial pressure of component B will also not be equals to partial pressure of pure component B into mole fraction of component B. So we are talking about the ideal solution. तो हमने जैसे बात की कि ये क्या करेगा, बिल्कुल आइडियल गैस की तरह ही ये पूरा राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा अंडर ऑल स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन. मैं पहले ही बता चुकी हूँ, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो होगा या मिक्सचर जो होगा दैट विल बी 0, डेल्टा एच जो है वो 0 होगा, और ए बी इंट्रैक्शंस जो होंगे वो सेम होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, वैल्यू वाइज, ए और बी इंटरैक्शन के. ठीक है. सो जैसा मैंने बात की थी अभी कि आइडियली there is no ideal solution, but yes obviously under certain conditions या कुछ टाइम के लिए कुछ solutions जो हैं वो ideal behavior दिखा सकते हैं. So the solutions which is having a low concentration of solute usually they behave ideally. For example, benzene and toluene mixture or chlorobenzene and bromobenzene mixture is showing an ideal
solutions. नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन. सो ऑब्वियसली जैसा हमने कहा that these solutions are those one which do not follow Raoult's law and usually जो कि हमारे अकर करते हैं delta V mixing change in volume that will not all equals to 0 and change in enthalpy after mixing that will be also not equals to 0. और अगर हम बात करते हैं दो कंपोनेंट की जिसमें एक एज ए सॉल्यूट और दूसरा एज ए सॉल्वेंट होता है तो they interact with one another with a different force means AA, AB, AA, BB and AB interaction is not equal or same in magnitude. So we can say that they interact with a different force than forces of interaction in between the molecules of pure compounds. ठीक है जी. इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट्स या कोई भी मिक्सचर हो सकता है. फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड which is behaves as a solute or a component 2,1 and water which act as a solvent as a and component B या 2 कह सकते हो आप. So huge amount of energy is evolved means delta H mixing that is not equals to 0 and because of huge amount of energy or heat is evolved then change in volume is also observed in this one case. So we can say this is a case of non-ideal solution. Now beta non-ideal solutions are further divided into two types. That is the first one. ये दो तरीके की डेविएशन दिखाता है आइडियल सोल्यूशन से. पहली होती है आपकी पॉजिटिव डेविएशंस. अगर आपका मिक्सचर जो है वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर is always higher than what is expected from the ideal mixture then it is known as a positive deviation. ठीक है. दोबारा बताऊं कि पॉजिटिव डेविएशन किसे कहेंगे जब राउल्स लॉ से आपका जो आइडियल सोल्यूशन में जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर आपका मिक्सचर का है then it is to be considered as a positive deviation. As you can see here in the graph that this is the vapor pressure of pure component B, this is the vapor pressure of pure component A. Actual vapor pressure आपका होना चाहिए था जो आइडियल वेपर प्रेशर है बेटा वो ये स्ट्रेट लाइन है. ठीक है. बट जो हमें यहाँ पर वेपर प्रेशर मिला वो ये वाला मिला है जो कर्व है. लिटिल बिट डेविएशन आ गई इसमें. एक आना क्या चाहिए था स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी बट उसकी जगह हमारे पास इंस्टेड ऑफ वी आर गेटिंग द स्ट्रेट लाइन इन द ग्राफ वी आर गेटिंग अ स्लाइट कर्व. एंड हाईएस्ट वेपर प्रेशर जो है इसमें दैट इज the anywhere is still the vapor pressure of pure component A. अगर आप ये नोट डाउन करो तो यहाँ पे जो हाईएस्ट वेपर प्रेशर है ना ये आपकी वेपर प्रेशर की वैल्यू है. ये है आपका मैं बता देती हूँ. ये आपका वेपर प्रेशर है और ये आपका क्या है काई है मोल फ्रैक्शन है. तो इन दोनों के रेफरेंस में कर्व जब प्लॉट किया गया तो वेपर प्रेशर ऑफ जो प्योर कंपोनेंट ए है दैट इज टू बी ऑब्जर्व्ड हाईएस्ट वन. और ये केसेस जो होते हैं जिनमें की डेविएशन स्मॉल है बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है बट देयर इज द डेविएशन इन द observed in comparatively to the Raoult's law. So these are sometimes behaves like ideal mixture also under certain conditions. But some liquid mixtures which is having a very large positive deviation ऐसा भी हो सकता है. तो उन cases में कर्व जो होगा वो क्या हो जाएगा डिस्टॉर्ट हो जाएगा. डिस्टॉर्ट माने बिखर जाएगा. ठीक है बेटा.
अब हम बात करते हैं जहाँ डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो गया. सो द फैक्ट वेपर प्रेशर इज हायर देन आइडियल. इट मीन्स क्या मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स जो हैं बेसिकली दे आर ब्रेकिंग अवे मोर इजीली देन दे डू इन द प्योर लिक्विड्स. वो जल्दी जल्दी टूट रहे हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहा है, उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है इन बिटवीन ए एंड बी दैट इज लेस as it is present in AA molecules और BB molecules. ठीक है, एक्चुअली में जितना था. और यही हम देख सकते हैं कि जब हम लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो लेस हीट इज इवॉल्व व्हेन न्यू अट्रैक्शंस आर सेट अप. ठीक है, कम होगी AA और BB के कंपैरेटिवली. जब AB बनेगा तो लेस हीट इज इवॉल्व एंड इट मीन्स दैट इनिशियली जो ओरिजिनल वंस को ब्रेक करने के लिए थी उसके कंपैरेटिवली में न्यू हीट एनर्जी लेसर होगी एंड सो हीट विल देयरफॉर बी एब्जॉर्ब्ड व्हेन द लिक्विड मिक्स टुगेदर, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज जो डेल्टा H है दैट विल बी एंडोथर्मिक. ठीक है, वो नेगेटिव हो जाएगा. तो ऐसे में हम सबसे इजी एग्जांपल ले सकते हैं किसका, इथेनॉल एंड वाटर का. ये जो है एक हाईली डिस्टॉर्टेड कर्व देता है बेटा, और इसमें जो है मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है मिक्सचर का दैट इज 95.6% ऑफ इथेनॉल बाय मास. सो सिंपली अगर हम कहें कि मिक्सचर्स जिनकी रेंज ऑफ कंपोजिशन जो है माने जिनमें हायर वेपर प्रेशर है प्रेजेंट ईदर फ्रॉम द प्योर वन लिक्विड. सो इन दिस वन these are showing usually such a type of a graph. देखो ये आइडियल वेपर प्रेशर का ग्राफ है और ये डिस्टॉर्शन हो गया. अब इसमें जब अगर आप डिस्टॉर्शन देखो तो जो हमारा हाईएस्ट वेपर प्रेशर था उससे भी वैल्यू जो है किसी पॉइंट पे क्या हो गई है, ज़्यादा चली गई है, हाईएस्ट चली गई है ना, वेपर प्रेशर और हाई पहुंच गया. सो दैट इज नॉट of the pure one liquid. Pure liquid से भी maximum vapor pressure pure liquid का नहीं रहा. इस केस में maximum vapor pressure किसका हो गया, simply partial pressure का हो गया किसी stage में जाकर के. I just want to explain that one thing. So just keep it in mind कि ऐसे cases में पॉजिटिव डेविएशन के अंदर ये वाले केसेस भी आते हैं और स्लाइटली डिस्टॉर्टेड वाले भी आते हैं जिसमें कि जो प्योर मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है वो प्योर लिक्विड्स का होता है. ठीक है, सिमिलरली देयर इज द अनदर टाइप ऑफ अ नेगेटिव डेविएशन. इसमें क्या होगा बेटा, जब राउल्ट लॉ से जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे कम की डेविएशन आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी. तो दैट इज द वी कैन से द मिक्सचर्स व्हिच इज हैविंग अ वेपर प्रेशर लेस देन इट इज एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ. ठीक है, सो देयर विल बी द negative deviation will be observed and these deviation if these are small but sometime वही सेम कुछ केसेस में जो आपका ग्राफ होगा कर्व होगा वो बहुत ही स्मॉल इस तरीके से जाएगा और उसके अंदर भी जो होगा वेपर प्रेशर कहीं ना कहीं आपका जो प्योर कंपोनेंट ए है उसके मैक्सिमम वेपर प्रेशर उसके इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, या उससे लोअर होगा ये वाली स्टेज. बट अगर इसके अंदर भी सेम रहेगा बेटा दैट मॉलिक्यूल्स ब्रेक अवे करेंगे और फ्रॉम द मिक्सचर्स लेस इजीली दैट दे डू इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम प्योर लिक्विड्स एंड न्यू जो फोर्सेस बनेंगे वो स्ट्रॉन्गर होंगे एग्जिस्ट इन द मिक्सचर कंपैरेटिवली टू द ओरिजिनल लिक्विड्स. ठीक है, और इसमें क्या होगा, उसमें हीट एब्जॉर्ब हुई थी, इसमें हीट इवॉल्व होगी व्हेन वी मिक्स द लिक्विड्स. मोर हीट इज गिवन आउट व्हेन न्यू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स आर मेड देन और comparatively to the bonds which used in breaking the original weaker ones. ठीक है, और it involves actual reaction in between two liquids. ठीक है, major negative deviation
तभी होगी when there is a reaction in between two components like nitric acid and water. As you can see here, when H2O plus HNO3 react with each other, then it gives H3O positive plus NO3 negative, nitrate ions दिए हैं. So these two covalent molecules gives hydroxonium ion and hydronium है बेटा ये, ठीक है, it's not hydronium, just one. Hydronium ions and nitrate ions, and as you can see here, very strong ionic interactions involved in this type of a mixture. ठीक है. So now we are going to compare the positive and negative deviation. तो कौन सा है positive deviation? When AB interaction is less than AA and BB interaction, whereas negative deviation में when AB interaction is more than AA and BB interaction. ठीक है, जब ओरिजिनल इंट्रैक्शन मिक्सचर का ज़्यादा है प्योर कंपोनेंट के इंट्रैक्शंस के कंपैरेटिवली, तो वो नेगेटिव डेविएशन है, और जब मिक्सचर के कंपोनेंट का इंट्रैक्शन कम है प्योर कंपोनेंट के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन से, तो वो पॉजिटिव डेविएशन है. राउल्स लॉ, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, if it is more than the product of pure partial pressure of pure component into mole fraction of component, then it will be considered as positive deviation, और जब ये less than है तो it is to be considered as negative डेविएशन. इसके अंदर बेटा पहले ही बता चुकी हूँ, डेल्टा V मिक्सचर और डेल्टा H दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, जबकि नेगेटिव के अंदर डेल्टा V मिक्सचर और डेल्टा V H मिक्सचर, that both are the gives the negative value, means it is not equals to 0. When it is more than 0, then it is to be considered as positive, and when it is less than 0, then it is to be considered as negative. Process dilution करने का positive deviation में endothermic होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जबकि डाइल्यूशन करने पे इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन एक्सोथर्मिक होगी, एनर्जी रिलीज्ड होगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होगी. ठीक है. There are the few examples of positive and negative deviation जो कि आपको करने हैं. तो ये सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स हैं. सो जस्ट गो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स ऑल्सो, इन्हें पढ़ लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं हमें. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. आइडियल सोल्यूशन which follows the Raoult's law completely, and the non-ideal solution which do not follow Raoult's law. And ideal solutions are those solutions which exist, or few solutions behave ideally under certain conditions, whereas non-ideal solutions, those one which do not follow the Raoult's law, or these are of two types, or these are showing two type of deviations comparatively to the Raoult's law, that is positive and negative deviation. ठीक है. So just go through the NCERT book also and read the topic ideal and non-ideal solutions, positive and negative deviation from your NCERT book. Thank you.